हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम इस क्लास में शुरू करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी सेल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। पहले हम डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द इंटर कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा एंड द रिलेशन बिटवीन देम, है ना। तो केमिकल एनर्जी को कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और किसी में किया जाता है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है और किस इंस्ट्रूमेंट में किया जाता है ना। तो टू टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स आर देयर, वन इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, अनदर इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गाल्वानिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है ना, इट कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, whereas इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या करता है ना, द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस इज कैरिड आउट बाय दिस सेल। तो पहले हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बारे में बहुत अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम आखिर में फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी गाल्वानिक सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल? बिफोर गोइंग टू द इलेक्ट्रोलिटिक सेल वी शुड नो the process of electrolysis. The electrolysis is the process of decomposition of any electrolyte in its solution or in its fused state by the passage of electric energy or by the passage of electricity. यानी अगर हम कुछ इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, उसका सॉल्यूशन बनाते हैं या उसका फ्यूज स्टेट लेते हैं, if we will pass electricity in this or through that, the chemical decomposition of that electrolyte will happen and that process is known as electrolysis. ठीक है ना, हमने यहाँ लिखा है, आप देखिए, electrolysis the process of chemical decomposition of an electrolyte in solution or in the fused state by the passage of electric current is known as electrolysis. तो हमने जो पहले पढ़ा था, conversion of electrical energy into chemical energy and a conversion of a chemical energy into electrical energy, two branches we have to discuss in the electrochemistry. तो ये कौन सा करता है? ये किस इंस्ट्रूमेंट में होता है? दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होता है। और ये किस में होता है ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और गाल्वानिक सेल में होता है, ठीक है। तो चलिए पहले देखिए व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, हाउ इट इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, है ना। आप इसको नोट कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं, दिस इज an electrolytic tank. This is an electrolytic tank. Either it is made up of glass or stone. This should be non-conducting, है ना। This tank consists of or contains the electrolytic solution inside this. You have to take one electrolytic solution, maybe a sodium chloride or copper sulfate, whatever it may be, the electrolytes, we have to take the solution of a electrolyte inside this. And two electrodes are there. One electrode is connected to the positive terminal of a battery and another electrode is connected to the negative terminal of that battery. The electrode which is connected to the negative terminal, that is termed as cathode, and which is connected to the positive terminal, that is anode. You have to remember this. You just remember one thing, neg cathode, because cathode is always connected to the negative terminal of the battery in the process of electrolysis, right? So here this is cathode and this is anode. We have written here cathode and this is anode. We have taken inside this the electrolyte solution and here we are supplying the power through a battery. So what will happen when the power is supplied through these electrodes, as it is cathode and we have taken the electrolytic solution into the vessel, first what will happen? In the solution of electrolyte, the electrolyte will dissociate into cations and anions. कुछ पॉजिटिव आयन्स होंगे, कुछ नेगेटिव आयन्स होंगे। पॉजिटिव आयन कैटन, नेगेटिव आयन क्या होगा? आनायन होगा। आप समझ गए। मान लीजिए हम NaCl लेते हैं तो क्या होगा? Na प्लस Cl माइनस, तो Na प्लस कैटन Cl माइनस आनायन
will be available in this solution. Furthermore, any other imagine any other ions are there? Yeah, because we are taking in the solution with water, so water is having also ion H plus and OH minus ion. So in this solution, 4 types of ions are available there. One is if we have taken NaCl, Na plus ion, and from water H plus ion, and a OH minus from water and Cl minus ion from NaCl. आप समझ गए ना? Na plus ion, H plus ion, and a Cl minus ion and a OH minus ion. 4 types of ions are there available there in this electrolyte, as we have taken NaCl as an electrolyte and its a solution. Okay, so here this is cathode, it is a metal strip, conducting metal strip, and it is also a conducting metal strip. So what will happen? As this is positively charged particle and it is connected to the negative terminal of the battery, so the positive charge particle will start moves towards the cathode, all the positive charge, है ना? तो यहाँ दो तरह का पॉजिटिव चार्ज Na प्लस H प्लस से कौन जाएगा, ये भी एक बात आता है, सवाल आता है. दूसरी बात है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, सो द नेगेटिव आयन्स और आनायंस विल ट्रैवल टुवर्ड्स द एनोड. When this positive ion will go towards the cathode, what will happen? Here reduction will go. Here you see at cathode reduction, cation plus electron will give neutral element. मान लीजिए what happen? Sodium ion here will be converted into, by accepting one electron, sodium element. It will be deposited at cathode. समझ गए आप? आप बोलेंगे सर H प्लस भी जा सकता है. हम उसको डिस्कस करेंगे कौन जाएगा वहां, कैसे जाएगा, वी विल डिस्कस जस्ट फॉलोइंग दिस. नो, एट एनोड क्या ऑक्सीडेशन होगा, बिकॉज द आनायंस विल रीच एट द एनोड, एंड एनोड फ्रॉम एनोड इट विल लॉस वन इलेक्ट्रॉन एंड इट विल गिव द एलिमेंट ऑफ Cl, बिकॉज NaCl था, Cl माइनस था, इट वाज ऑलरेडी हैविंग वन इलेक्ट्रॉन, सो इट विल give that electron and it will convert it to C element, Cl plus 2Cl2, so that will be converted to molecule. आप समझ गए? आप ये भी बात कर सकते हैं, OH माइनस भी आ सकता है ना. Not only this, another phenomena is also here. Which type of metal we have taken here? What metal is of this cathode and what metal of this is anode? मान लीजिए कॉपर है, जिंक है, या सोडियम है, या व्हाटएवर इट में भी. सो यहाँ एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना इसके अंदर होता है. जस्ट डीपली अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज इसके अंदर ये जो इलेक्ट्रोलिसिस टैंक के अंदर एक कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है. कॉम्प्लेक्स मीन्स यहाँ किस किस के बीच में इंटरेक्शन हो सकता है. हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में है उसमें हमने देखे 2 टाइप के पॉजिटिव आयन है, 2 टाइप के नेगेटिव आयन है. फिर इसके बाद हमने जो सिलेक्शन करेंगे इलेक्ट्रोड, व्हिच मेटल विल सिलेक्ट, व्हिच मेटल विल सिलेक्ट. सो ये मेटल जो है उसका इसके साथ क्या रिएक्शन है, क्या इंटरेक्शन है, क्या रिएक्शन कर सकता है, ये इनके साथ क्या कर सकता है, तो ये भी एक बात है. तो ये जो 6 तरह का आ गया, ये 1 2 3 4 5 6, तो इनके अंदर कौन किसके पास जाएगा? OH माइनस पहले आएगा, ये Cl माइनस पहले आएगा, Na प्लस पहले जाएगा, H प्लस पहले जाएगा, या ये वाला जो है ये इसके अंदर अटैक हो जाएगा या डिजल्व हो जाएगा, या डिजल्व ये हो जाएगा, ये बिल्कुल डिजल्व नहीं होगा, या इसको कोई अटैक नहीं कर पाएगा. तो मेनी थिंग्स आर देयर, बट वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर, एट कैथोड ऑलवेज रिडक्शन इज कैरिड आउट बाय द ions, cations are from the electrolytic solution reaches at the cathode and it accepts one electron, so reduction is carried out. This is the fundamental thing you have to remember. And at anode, the anions are reaching at the anode and relieving one electron or donating one electron, the oxidation is carried out here, any loss of electron. So at anode oxidation and at cathode reduction is mandatory in the case of electrolysis tank. आप समझ गए अच्छी तरह, इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इलेक्ट्रोलिटिक सेल, because in electrolytic cell the process of electrolysis is carried out.
Electrolysis is nothing but the process by which the decomposition of an electrolyte in its solution or fused state is carried out by the passage of an electric current। समझ गए आप? अब देखिए जो ये किसके पर डिपेंड करता है, ये जो इलेक्ट्रोलिसिस हो रहा है इसके अंदर हमने बोला Na जाएगा या H प्लस जाएगा, Cl माइनस जाएगा, OH माइनस कौन जाएगा, या ये क्या होगा, ये क्या होगा। तो दिस इलेक्ट्रोलिसिस किसके इसके फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसके पास जाएगा, ये किसके डिपेंड करता है, किसके फैक्टर, हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड द आयंस प्रेजेंट इनसाइड दिस इलेक्ट्रोलाइटिक टैंक। Out of those ions, which ion will first move towards cathode or anode for the discharge। यानी हमने बात कर रहे थे वहां दो तरह के पॉजिटिव आयन से, दो तरह के नेगेटिव आयन से, एक सॉल्वेंट का और एक सॉल्यूट का। यानी एक इलेक्ट्रोलाइट का कैटायन है, एक सॉल्वेंट यानी वाटर का एक कैटायन है, एक इसका आनायन है और उसका भी एक आनायन है। तो कौन सा कैटायन पहले कैथोड के पास जाएगा, दैट वी हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड। तो ये कितने पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है, सिलेक्टिव डिस्चार्ज ऑफ आयन से, यानी कौन सा आयन पहले सिलेक्ट होगा टू मूव टुवर्ड्स कैथोड और कौन सा सिलेक्ट होगा टू मूव टुवर्ड्स एनोड। इट डिपेंड्स अपॉन थ्री फैक्टर्स। नंबर वन, सिलेक्ट ए पोजीशन ऑफ आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। वो जो आयन्स हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे उसका कहां पर स्थान है। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज? A series has been formulated by the experiments by the scientists। ये इसको बिल्कुल अच्छी तरह एक्सपेरिमेंट करके उसमें क्या हुआ है, इसको स्टैंडर्ड लेके एनोड कैथोड को स्टैंडर्ड, कैथोड और एनोड को स्टैंडर्ड लेके, है ना, और उसमें सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन लेके, और ये सारे अगर हम लेते हैं क्या, उसके अंदर लेते हैं सोल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशंस जिसमें गोल्ड हो, सिल्वर हो, कॉपर हो, हाइड्रोजन, लीड, व्हाटएवर इट हैज बीन रिटन। तो इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर में दे रखा है, इंक्रीजिंग इजी ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड। कैथोड में कौन सा इसमें से सबसे पहले डिस्चार्ज होगा, गोल्ड सबसे होगा। मान लीजिए गोल्ड और सिल्वर है तो कौन सा पहले कैथोड की तरफ भागेगा, गोल्ड भागेगा। समझ गए? मान लीजिए हाइड्रोजन है, कॉपर है, कौन सा भागेगा पहले, पहले कॉपर भागेगा, उसके बाद हाइड्रोजन भागेगा। मान लीजिए हाइड्रोजन और सोडियम है तो कौन पहले जाएगा कैथोड के पास डिस्चार्ज होने के लिए, पहले जाएगा हाइड्रोजन। आप समझ गए? सो यू हैव टू रिमेंबर दिस सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इंक्रीजिंग इजी ऑफ डिस्चार्ज एट कैथोड। यू हैव टू रिमेंबर दिस डेफिनेट, बिकॉज फ्रॉम दिस ओनली यू कैन आइडेंटिफाई व्हिच आयन विल बी सिलेक्टेड टू गो टू द कैथोड फर्स्ट। समझ गए? वैसे ही इंक्रीजिंग इजी ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड, एनोड के पास कौन पहले डिस्चार्ज होगा, ये दे रखा है इंक्रीजिंग इजी ऑफ डिस्चार्ज एट एनोड। सबसे पहले आयोडीन भागेगा, उसके बाद ब्रोमीन, यानी आयोडीन और OH माइनस है तो कौन पहले जाएगा, आयोडीन जाएगा। अगर क्लोरीन और OH माइनस से कौन जाएगा पहले, क्लोरीन जाएगा। ये आप समझ गए। वन इज पोजीशन ऑफ आयन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, दैट सीरीज हैज बीन फॉर्मुलेटेड बाय एक्सपेरिमेंटल मींस। सो यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ दिस, यू नोट डाउन दिस। ओके, नंबर टू, कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज इंपॉर्टेंट। कॉन्सेंट्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेंट्रेशन क्या है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कौन सा जाएगा। मान लीजिए हम इसके अंदर HCl ले रखे हैं, क्या ले रखे हैं, HCl सोल्यूशन। HCl में क्या क्या आयन्स होंगे, अगर HCl हम लिए H प्लस Cl माइनस, और कौन सा होंगे, H2 का कौन सा होंगे, H प्लस OH माइनस। सो इसमें OH माइनस पहले जाएगा या Cl माइनस पहले नोड की जगह जाएगा, ये पहले हमको सोचना चाहिए। अगर हम ये सीरीज देखें तो इंक्रीजिंग इजी ऑफ डिस्चार्ज ऑफ एनोड कौन सा पहले होगा, Cl पहले होना चाहिए ना। अगर हम कॉन्सेंट्रेशन ले रहे हैं बिल्कुल हाई कॉन्सेंट्रेटेड HCl ले रहे हैं, यानी डाइल्यूट नहीं है, या कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HCl इज ग्रेटर, तो क्या होगा, क्लोरीन अपने आप पहले चला जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए। अगर हम सॉल्यूशन को बहुत ही डाइल्यूट कर दिए हैं HCl को, जिसमें कि OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन इज फार ग्रेटर देन द Cl माइनस आयन, यानी अगर OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन Cl माइनस आयन से बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, इंस्टेड ऑफ Cl माइनस आयन OH माइनस आयन विल बी डिस्चार्ज्ड एट एनोड। आप समझ गए कॉन्सेंट्रेशन का मतलब। कॉन्सेंट्रेशन अगर ज्यादा हो गया, जो जाना चाहिए वो नहीं जाएगा, जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है वो चला जाएगा डिस्चार्ज होने के लिए। ये आप समझ लेना, ठीक है ना।
अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया किसका, Cl जाना चाहिए, वो यहाँ देखिए Cl जाना चाहिए, OH माइनस उसके बाद जाना चाहिए। अगर OH का कॉन्सेंट्रेशन से ज्यादा हो गया तो OH जा सकता है डिस्चार्ज होने के लिए पहले एनोड के पास। आप समझ गए। तीसरा क्या है ना, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड। इसको आप अच्छी तरह समझना और याद भी रखना है। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड कितने तरह के होते हैं, इलेक्ट्रोड दो तरह के होते हैं, वन इज नॉन अटैकेबल एंड अनदर इज अटैकेबल। आप लिख लीजिए इलेक्ट्रोड कितना तरह का होता है, वन इज अटैकेबल, दूसरा इज नॉन अटैकेबल। इसका मतलब क्या, अटैकेबल क्या है, नॉन अटैकेबल क्या है, जिसको अटैक कर सकते हैं। मान लीजिए हम यहाँ एक ले रखे हैं इलेक्ट्रोड और इसमें सॉल्यूशन में हमारा Cl है और इस Cl जाके इसको अटैक यानी इसके साथ रिएक्शन कर देगा तो क्या हो जाएगा, ये अटैकेबल हो जाएगा। इसके अंदर मान लीजिए Cl आयन है, हम HCl ले रखे हैं, अगर हम एक ऐसा कैथोड लेंगे जो इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, अटैकेबल क्या बोलेंगे। अगर ऐसा एक हम इलेक्ट्रोड लेंगे जो इसके अंदर जितने आयन से किसके साथ रिएक्शन ही नहीं करेगा तो दैट इज नोन एज नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। और अटैकेबल इलेक्ट्रोड ऑल्सो डिसाइड्स कौन जाके पहले करेगा। अभी हमको आप समझाते हैं एग्जाम्पल देके, आप देखिए कौन सा एग्जाम्पल देके आपको समझाते हैं, ठीक है ना। पहला एग्जाम्पल देखिए, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ फ्यूज्ड NaCl। मान लीजिए हम इसमें NaCl ले रखें तो क्या होगा, NaCl Na प्लस प्लस Cl माइनस H2 क्या हो जाएगा, H प्लस OH माइनस। तो यहाँ Na प्लस भी अवेलेबल है, H प्लस भी है ना। और इसमें जो इलेक्ट्रोड हम ले रखे हैं मर्क्यूरी का ले रखे हैं, कितना किसका ले रखे हैं, मर्क्यूरी का ले रखे हैं। दिस इज अटैकेबल इलेक्ट्रोड। जब अटैकेबल इलेक्ट्रोड हम ले रहे हैं क्या हुआ रहा है, 8 कैथोड, ये सोडियम जा रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन लेके सोडियम एलिमेंट में कन्वर्ट हो रहा है। एनोड में क्या होता है, वही क्लोरीन आता है, हो जाता है। लेकिन जाना कौन सा चाहिए, Na और H प्लस, दोनों में कौन सा जाना चाहिए, H प्लस जाना चाहिए, क्योंकि H प्लस का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसका इलेक्ट्रोनिक सीरीज में हायर इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये जल्दी हो सकता है, हो जाना चाहिए, लेकिन ये जाता नहीं क्योंकि दिस इज अटैकेबल इलेक्ट्रोड। तो मर्क्यूरी क्या करता है, H प्लस के बजाय Na को अटैक कर लेता है, यानी Na उस पर जाके जल्दी डिपोजिट होता है। आप समझ गए। लेकिन हम नॉन अटैकेबल अगर लेंगे, प्लाटिनम ले गए, इलेक्ट्रोड क्या ले गए, प्लाटिनम ले गए, तो प्लाटिनम ले जाने से क्या हो जाएगा, H प्लस पहले जाएगा, बिकॉज H प्लस इज जेन्युइनली हैज टू गो बिकॉज इट इज हैविंग द ग्रेटर पोजीशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ये पहले जाना चाहिए, तभी जब इसका नॉन अटैकेबल यानी इसका कुछ इन्फ्लुएंस है ही नहीं, तभी ये पहले अपने आप जाएगा, H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ H2 गैस फॉर्म दैट इज अनस्टेबल चला जाएगा, उधर वैसे ही सेल आएगा, सेल। आप समझ गए। यानी अगर ये अटैकेबल होता है, इसके अंदर किसके अटैक करने का इसका क्षमता रखता है, जैसे मर्क्यूरी इज हैविंग द कैपेसिटी टू अटैक द सोडियम वेरी क्विकली, सो सोडियम विल गो फास्ट टू डिस्चार्ज एट द कैथोड। लेकिन अगर हम प्लैटिनम ले लेते हैं, ये नॉन अटैकेबल, इसको अटैक नहीं कर सकता है, तो अपने आप जो नियम हमने बनाया था दैट इज द प्लेस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल, द प्लेस ऑफ एलिमेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उसके अंदर उसी के हिसाब से पहले H प्लस जाएगा, जैसे यहाँ H प्लस गया। आप समझ गए। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहे हैं, आप देखिए इसको। ये दूसरा एग्जाम्पल इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट। अगर हम अटैकेबल इलेक्ट्रोड लेते हैं, कॉपर को अटैकेबल इलेक्ट्रोड लेते हैं, तो 8 कैथोड क्या हो जाएगा, यहाँ जो कॉपर सल्फेट Cu2 प्लस आयन प्लस SO2 माइनस है, इसमें से Cu2 प्लस व्हाट विल हैपन, इट विल गो टू द कैथोड एंड इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड कन्वर्ट टू द कॉपर एलिमेंट। तो उसके ऊपर कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। तो इसके अंदर SO2 माइनस बचा। अब ये H प्लस है, OH माइनस है, OH माइनस यहाँ आना चाहिए, SO2 माइनस आना चाहिए, क्योंकि एनोड के जगह आना चाहिए, दोनों आना है, लेकिन ये कोई नहीं आएंगे। इधर कौन आएगा, ये क्या होगा, डीजल हो जाएगा। ये जो कॉपर इसमें है, अभी हमारा एनोड है, कॉपर डीजल इनसाइड द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और ये Cu2 प्लस देगा टू कॉम्पेंसेट। ये जो Cu2 प्लस इधर गया होगा, इसके अंदर Cu2 प्लस दे देगा। तो कैसे जाएगा एनोड, Cu माइनस 2 दैट इज Cu2 प्लस। आप समझ गए। यानी अगर ये कॉपर इलेक्ट्रोड क्या होगा, एनोड क्या होगा, धीरे 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 उसमें लॉस होता जाएगा, डीजल होता जाएगा, और इसके ऊपर कॉपर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। आप समझ गए। ये वेरी इंपॉर्टेंट। ये कहाँ इस्तेमाल होता है, फॉर द प्यूरिफिकेशन ऑफ द मेटल्स एट द टाइम ऑफ एक्सट्रैक्शन। जब हमको प्योर मेटल बिल्कुल चाहिए, कॉपर का प्योर मेटल चाहिए, मान लीजिए इम्प्योर मेटल है कॉपर, हम ले लेंगे, तो और इधर एक प्योर मेटल का थ्रू ये ले लेंगे, इलेक्ट्रोड ले लेंगे, तो ये इम्प्योर मेटल स्ट्रिप का ये मेटल यहाँ डालेंगे आज इलेक्ट्रोड, ये एनोड, और इसके अंदर कॉपर सॉल्यूशन ले लेंगे। तो इससे क्या होगा ना, यहाँ
ये इसमें डिजल होता जाएगा और इधर प्योर कॉपर हमको मिल जाएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि इधर सिर्फ कॉपर डिजल होगा और कोई इसमें डिपॉजिट होगा और कुछ डिपॉजिट नहीं होगा। आप समझ गए। दिस इज वन ऑफ द मेटल एक्सट्रैक्शन मेथड बिकॉज टू कॉपर इलेक्ट्रोड, दिस इज आटा केबल, कॉपर आटा केबल, तभी ये OH माइनस NaOH का SO4 2 है वो किसके पास Cu कॉपर क्या हो गया, अपने आप डीजल हो गया। आप समझ गए। इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन इधर Cu2 प्लस तो चला गया, ये कॉपर इसमें डीजल हो गया। दिस इज ओनली ड्यू टू द आटा केबल इलेक्ट्रोड कॉपर, नहीं तो नहीं होता। दूसरा नॉन आटा केबल इलेक्ट्रोड, अगर हम कॉपर के बदले यहाँ प्लाटिनम ले लेंगे तो अपना जो जनरल लॉ है, जनरल लॉ है, उसके ऊपर काम चलेगा। कैथोड क्या होगा, Cu2 प्लस प्लस 2 ही कॉपर जाएगा, है ना। अभी 2 है OH माइनस SO4, इसमें इंक्रीजिंग में कौन सा है OH माइनस, तो OH जाएगा 4H माइनस, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा यहाँ, ये दे देगा 4 इलेक्ट्रॉन देके 4OH में कन्वर्ट हो जाएगा और 4H क्या हो जाएगा 2H2 प्लस O2 में कन्वर्ट हो जाएगा। O2 क्या होगा, अनस्टेबल। आप समझ गए। अगर प्लैटिनम लेते हैं नॉन अटैकेबल तो हमारा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जैसे है उसी के हिसाब से सिलेक्टिव डिस्चार्ज होगा। अगर अटैकेबल ले गए तो क्या होता है, वह फर्क हो जाता है। और ये अटैकेबल कॉपर, दिस इज यूज्ड फॉर द मेटल एक्सट्रैक्शन टू गेट द वेरी प्योर मेटल और विदाउट एनी इंप्योरिटी इनसाइड द मेटल। बच्चों देखो ये लास्ट एग्जांपल हम ले रहे हैं बिकॉज दिस इज समहाउ इंपॉर्टेंट फॉर अस। जब हम इलेक्ट्रोलिसिस हम वाटर करते हैं, पानी का अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे हमको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिलेगा ना। लेकिन एक्चुअली प्योर वाटर इज ए नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आप यू नो, आप जानते हैं इसको, प्योर वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। अगर उसको हम थोड़ा सा डाइल्यूट टू एसिडिफाइड कर देंगे या तो ये इट विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो हमने इलेक्ट्रोलिसिस वाटर एसिडिक, अगर हम उसमें एसिड की थोड़ा मीडियम बना दें या H2SO पर मान लीजिए हम थोड़ा डाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा। सो दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इट विल कन्वर्ट इट टू इलेक्ट्रोलाइट। सो वी कैन गो फॉर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। समझ गए आप। यहाँ देखिए, मान लीजिए यहाँ H2SO पर हम डालें तो 2H प्लस प्लस SO4 2 माइनस इसके अंदर हो जाएगा, क्योंकि हम वाटर के साथ ले रखे हैं। वाटर क्या हो जाएगा H2O H प्लस प्लस OH माइनस। तो कैथोड की जगह क्या अगर सोचिए। और हाँ, यहाँ हमने क्या लिखा है, यहाँ वी हैव टू टेक द नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड। नॉन अटैकेबल इलेक्ट्रोड हमेशा आप याद रखिए, प्लैटिनम इज द बेस्ट। सो प्लैटिनम हम ले लेंगे। जब प्लैटिनम ले लिए, यहाँ कौन जाएगा आप देखिए, इधर H प्लस है, इधर भी H प्लस, तो H प्लस जरूर जाएगा। कहाँ, कैथोड जाएगा। तो H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन क्या जाएगा, यहाँ हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन इज इक्वल टू हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस वी कैन गेट। ओके। और इधर क्या जाएगा, यहाँ SO4 2 माइनस OH माइनस कौन जाएगा, OH माइनस जाएगा बिकॉज इट इज इन द हायर पोजिशन इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। सो यहाँ आर नोड क्या हो जाएगा 4OH माइनस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स माइनस 4 इलेक्ट्रॉन गिव्स 4OH दैट इज 2H2 प्लस O2 गैस। सो पानी रह जाएगा और हमको ऑक्सीजन मिल जाएगा। सो वी कैन गेट H2 एंड O2। सो water can be converted into its constituent particle hydrogen and oxygen by the means of electrolysis and with the use of this electrolytic cell। आप अभी समझ गए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या कर रहे हैं, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट को हम डिकम्पोज कर पा रहे हैं, यानी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट उसके अंदर है वी कैन सेपरेट इट आउट, है ना।